سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ حاضر سروس جج کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ اہل خانہ نے فیصلہ مسترد کر کے GIT بنانے اور سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ادھر تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ سم حاصل کر لی۔ سم کے ذریعے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور بیک اپ ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ میر رضا قتل کیس کی گھٹی سلجھ نہ سکی، سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، اہل خانہ کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ سندھ کابینہ نے میر رضا علی خان کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ میر رضا کی موت کی تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کریں گے۔ ادھر میر رضا کے والدین کے وکیل اور اہل خانہ نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے بجائے GIT بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے GIT تاکہ ہماری انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکے، بیکاز وی آر رومنگ اراؤنڈ ان سرکلز اور اب تک کوئی جواب نہیں ہے۔ اہل خانہ نے سوال اٹھایا کہ پولیس نے 24 اگست کو رپورٹ جمع کروانی تھی، رپورٹ سامنے آئے بغیر کمیشن کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ پولیس نے 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ کیا وہ رپورٹ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا گراؤنڈس آف دس ڈیسیجن، وہ ہمیں انفارم نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ پولیس کی درخواست پر سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام منتقل کر کے بائیو میٹرک اور دستاویزی کارروائی مکمل کی گئی۔ تفتیشی ٹیم سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی اور بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائے گی۔ اور اب بات کریں گے ہنا جاوید قتل کیس کی، جس میں شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کے DNA نمونے حاصل کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے قتل میں استعمال رسی اور تار برآمد۔ مرکزی ملزم کے والد بھی تفتیش میں شامل ہیں۔ عدالت نے دونوں کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق فیصل نے ملازم ذیشان کو قتل میں معاونت کے لیے پیسے دیے تھے۔ ہنا جاوید قتل کیس میں اہم پیش رفت، ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور، شوہر کا والد بھی شامل تفتیش۔ راولپنڈی پولیس نے ہنا جاوید قتل کیس میں گرفتار شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے۔ مرکزی ملزم کے والد کو بھی شامل تفتیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ملزمان سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہنا جاوید کے شوہر فیصل اور ملازم ذیشان کی پیشی ہوئی۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے ملازم ذیشان کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ گھریلو ملازم نے قتل کے دوران مرکزی ملزم فیصل کی معاونت کی۔ ہنا جاوید کی پھندہ لگی لاش گھر کے واش روم سے برآمد ہوئی تھی۔ ہنا جاوید کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ قتل سے قبل بدترین تشدد کا انکشاف بھی ہوا۔ بول نیوز لرزہ خیز واردات کے محرکات سامنے لے آیا۔ ہنا کی بھابھی اور کزن کے مطابق نومبر 2025 میں شادی کے بعد ہنا کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، خاندان کے سوالات پر بھی شادی شدہ زندگی سے متعلق بات ٹال دیتی تھی۔ ہنا کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا کھو دیا۔ So marriage was less than 10 months, as you said, and she was always a reserved, confident but reserved person. However, from those that were closest to her in the family, it was becoming apparent that wo zyada khamosh hoti ja rahi thi. She was keeping things more inside. She wasn't sharing as much. The elders of the family, they would call her, they would say, khush ho. And she would kind of either move or just say haan main khush hu and then move on with it. Not that she would spill anything. جب انسان کسی رشتے میں جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کہ جاب کرتی ہے اور شادی سے پہلے اس نے اس گھر کو دیکھا، اس گھر میں ہر چیز کو دیکھنا کرنا، ہر چیز کی اس میں انوالومنٹ تھی، سب وہ کرتی تھی اور ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اس کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ ہوا ہو۔ ملک میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بھی کم نہ ہو سکے۔ بورے والا میں 10 سالہ بچی نشانہ بن گئی۔ جرائم کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آباد تھرا میران پور کی حدود میں شوہر غوث بخش نے غیرت کے نام پر بیوی نذیرہ کو قتل کر دیا۔
मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। शिकारपुर में घरेलू झगड़े पर बहावज को आग लगा दी गई। वाक़े के बाद फरार मुलजिमान खातून के देवर बताए जाते हैं। जन्नत नामी खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कोट राधा केशर में तीसरी शादी की इजाजत न मिलने पर मुलजिम मुजम्मिल ने बीवी नसरीन को जहर देकर कत्ल कर दिया। सियालकोट में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने बीवी के बाल काट दिए, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पूरेवाला में मुलजिम सजवार ने 10 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। दूसरी जानिब कराची के इलाके औरंगी टाउन में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम ओवैस पकड़ा गया। नजीराबाद में भी कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कराची में जराइम के 2 मुख्तलिफ वाक़यात हुए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। फिरोजाबाद में शहरियों ने डकैती के बाद फरार होने वाले मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि न्यू कराची सेक्टर 12D से कई रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजाबाद में 3 डाकू शहरी से असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। शहरियों ने डाकुओं का ताकुब किया। शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी होकर गिर पड़ा, जिसे अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 12D से एक शख्स की कई रोज पुरानी लाश बरामद हुई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़्फ़े की उम्र 40 साल से 45 साल के दरमियान है। मदरसे में 9 साल बच्ची से ज्यादती करने वाला कारी गिरफ्तार कर लिया गया है। कारी उमर सादिक ने सफाई के बहाने रोककर घिनौना फेल अंजाम दिया है। ये खबर सामने आई है, जबकि ये वाकया थाना शाहढेरी के इलाके में पेश आया है। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कारी गिरफ्तार कर लिया गया है। कारी उमर सादिक ने सफाई के बहाने रोककर घिनौना फेल अंजाम दिया है। वाकया थाना शाहढेरी के इलाके में पेश आया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों कत्ल होने वाली हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तहकीकात अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी हैं। इसरार खान से मजीद बात करेंगे। इसरार, अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के कुर्ती में होने वाले हिना मर्डर केस, जिसकी FIR थाना सिविल लाइन में मकतूला के भाई फ़हद की मुद्दत में दर्ज है, जिस पर पुलिस ने मौके वारदात से 2 मुलजमान मकतूला के शोहर फैसल असगर और मुलाजिम ज़ीशान को गिरफ़्तार कर लिया था। जबकि कल मुलजमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुलजमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। जबकि मकतूला के जो ससुर है वो बज़ात ख़ुद तफ्तीश में पेश हुए और पुलिस ने उनसे जो इब्तदाई तफ्तीश की, उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि मकतूला और शोहर के दरमियान ताल्लुकात कुछ सही नहीं थे, और जबकि इनके दरमियान इख्तलाफात थे जिनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा वगैरह होता भी रहता था। पुलिस ने दोनों मुलजमान फैसल और ज़ीशान के DNA टेस्ट भी के लिए उनके सैंपल हासिल किए, जिनकी फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। मज़ीद ये है कि पुलिस का ये कहना है कि मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद तहकीकात के दायरा अख्तियार को बढ़ाया जाएगा। बात करें अगर हम हिना जावेद की फ़ैमिली के हवाले से, तो मेरे हिना जावेद की फ़ैमिली का ये कहना है कि अब तक जो होने वाली तहकीकात है इसके हवाले से वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और उनको ये यकीन है कि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जो है यकीनी तौर पर इंसाफ होगा। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इन मुहर्रकात का मालूम नहीं हो जाता कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी, जब तक कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। जी, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिना जावेद कत्ल केस से मुताल्लिक खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। 45 साल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इसके साथ साथ मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशानात पाए गए हैं। खातून के हाथ बंदी फंदा लगी लाश वॉशरूम से बरामद हुई थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से, इसमें पेशरफ्त हुई है। कुछ देर कबल तक पोस्टमार्टम ना किए जाने की इतलात थी, लेकिन अभी खबर यह है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। इसकी कॉपी इस वक्त बोर्ड की स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। मजीद बात करेंगे, इसरार खान में ज्वाइन करें। इसरार बताएगा इसमें क्या दर्ज है। जी बिल्कुल, हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज है और मुकदमा मकतूला के भाई फहद जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मकतूला के खावंद और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान को गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। मजीद मकतूला की इब्तदाई पोस्टमार्टम जो है खून से भरा हुआ है। मजीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो है जो उसके जिस्म पे कई निशानात है जो कि जख्म के हैं, जो चोटों के हैं, और जो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान आ रहा है वो यही आ रहा है कि मकतूला को पहले जो है ना मारा गया, तशद्दुद किया गया है। यही कह रही है जो इब्तदाई रिपोर्ट है। उसके मुताबिक हिना जावेद का जो पोस्टमार्टम था मरने के तकरीबन 12 घंटे बाद डॉक्टर मारिया खालिद ने किया है। मजीद अब चूँकि मौत की जो वजह है उसका तयन जो है नहीं हो पा रहा, इसके लिए जो है उसके लाश के सैंपल जो है फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद मजीद वाज़ेह होगा
के मरने की वजह क्या हो सकती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हिना जावेद कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम है फैसल असगर के हवाले से एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसमें फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता था। फैसल असगर के जो यूट्यूब चैनल या जो सोशल मीडिया के चैनल है उन पर उसके लेक्चर की मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई है और इन वीडियोस में लेक्चर के दौरान मुलजिम फैसल असगर शोहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें देता हुआ नजर आ रहा है। और अक्सर वीडियोस में फैसल असगर, बल्कि एक वीडियो में फैसल असगर तालबा से शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिन वजह पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि फैसल असगर का तालबा से ये भी सवाल है कि शोहर बीवी को गोली मार दे तो इसकी क्या वजह हो सकती है, जिस पर तालबा ऐसा उसका जो जवाब है वो है कि ऐसा शोहर बहुत बुरा आदमी हो सकता है। जबकि फैसल असगर के एक और तालबा से एक सवाल करता है कि अगर बीवी का अफेयर हो और दौलत के शोहर के लिए वो शोहर को मारना चाहे, तो जिसमें तालबा का जवाब था कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि बीवी शोहर को कत्ल करना चाहती हो। रावलपिंडी का जो ये कत्ल है ना, जैसे इसके मुलजिम जो है फैसल असगर माजी के में लेक्चर्स वगैरह देता रहा, उनकी वीडियोस ने कई सवालात उठा दिए हैं। और मजीद ये है कि रावलपिंडी पुलिस जो है फैसल असगर के राब्ते में रहने वालों से भी अब पूछगछ शुरू कर रही है। जी ठीक है, केस की गुत्थी सुलझती जा रही है और इस हवाले से आप ये भी बता रहे हैं कि जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका।